عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صادق بیگ، انجم پی یو کالج داوڑگیرے۔ سال دوم کی نصابی کتاب ادب آگہی میں چھٹا چیپٹر زیور کا چکر، جن کے مضمون نگار ابراہیم جلیس ہیں، 1924 میں ان کی پیدائش اور 1977 میں ان کی وفات۔ یہ زیور کا چکر کیا ہے؟ ابراہیم جلیس زیور کے بارے میں ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھیں گے۔ اگر زمانہ قدیم سے دیکھا جائے تو زیور کو صرف درجے والے لوگ یعنی اسٹیٹس والے لوگ ہی پہنا کرتے تھے، جیسے کہ ملک روم میں صرف نامور لوگوں کو ہی یعنی کہ ایمیننٹ پیپل کو زیور پہننے کی اجازت تھی۔ لفظ زیور کا آغاز اوریجن لاطینی زبان سے ہے، یعنی کہ لیٹن ورڈ جو کیل ہے۔ تاریخ کہتی ہے آج سے تقریباً 40,000 سال پہلے سب سے پہلا زیور کرومیگنس کے آباء و اجداد پہنتے تھے۔ اب سبھی کو پتہ ہے، ویسے تو زیور عورتیں اپنی ذاتی زینت کے لیے پہنتی ہیں، تو اب یہاں نصاب میں شامل کردہ مضمون زیور کا چکر کے متعلق مضمون نگار خواتین کے زیورات سے رغبت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو نہایت ہی دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے ہم درسی کتاب دیکھیں گے۔ پیج نمبر 64۔ سب سے پہلے تخلیق کار ابراہیم جلیس گلبرگہ کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ گلبرگہ شریف کس لیے مشہور ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مشہور ہے۔ ابتدائی تعلیم گلبرگہ اور حیدرآباد میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، وہاں پر گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان جب اس کی بنیاد ڈالے تو وہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ تانے دینے لگے کہ سر سید شاید دیوانے ہو گئے۔ جو کوئی دنیا میں آج اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو بدنام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آج وہ یونیورسٹی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ تعلیم سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کبھی وقت ملا
تو اس کے بارے میں تفصیل سے الحمدللہ بات ہوگی۔ اور مسلم یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ کچھ عرصے حیدرآباد کمرشل کارپوریشن میں افسر رابطہ کے عہدے پر فائز رہے۔ پھر ممبئی جا کر فلمی ادارے ہندوستان کلا مندر سے وابستہ ہوئے، لیکن جلد ہی حیدرآباد لوٹے اور 7 روزہ رباب کی ادارت سنبھالی۔ ہفتے میں ایک بار شائع ہونے والا پیپر جس کا نام رباب کی ایڈیٹری سنبھالی۔ اسی دوران ریڈیو حیدرآباد کے لیے اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ 1948 میں سقوط حیدرآباد کے بعد پاکستان منتقل ہوئے اور لاہور کے روزنامہ جس طریقے سے یہاں پر سالار، سیاست، پاسبان وغیرہ وغیرہ جو نیوز پیپر شائع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان میں لاہور کے روزنامہ امروز کے سب ایڈیٹر بنے۔ پاکستان کی فلمی صنعت سے منسلک ہو کر کئی فلموں کے لیے کہانیاں اور مکالمے لکھے۔ پاکستان کے مؤخرہ اخبارات جنگ، انجام، حریت اور مساوات میں مدیر اور کالم نویس کی حیثیت سے خدمت انجام دے۔ ابراہیم جلیس کے قلم کی جولانیاں، جو قلم کی حرکت دوران تعلیم ہی اپنا جلوہ دکھانے لگی تھے۔ ادبی زندگی کا آغاز کہانیاں لکھنے سے ہوا، پھر انہوں نے اپنے طبعی میلان اور صحافتی جرنلزم ضرورتوں کے زیر اثر طنز و مزاح، تانا دینا اور مذاق کے میدان میں قدم رکھا، اور تحریر کی شوخی و برجستگی اور طنز کی کاٹ کے سبب انہوں نے بہت جلد اپنی انفرادی پہچان بنا لی، ایک الگ سے پہچان بنا لی۔ حیات انسانی کے گونا گوں، طرح طرح کے مسائل پر جب ابراہیم جلیس اپنے مخصوص خاص انداز میں قلم اٹھاتے ہیں تو قاری کے لبوں پر، پڑھنے والوں کے ہونٹوں پر جہاں مسکراہٹ کھل جاتی ہیں، وہیں طنز کے بھرپور وار کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زرد چہرے، تکونا دیش، 40 کروڑ بھکاری، آزاد غلام، زمین جاگ رہی ہے، جیل کے دن، جیل کی راتیں، 2 ملک ایک کہانی، نیکی کر تھانے جا، ایک پیسے کی خاطر جیسے لازوال طنزیہ و مزاحیہ تحریروں اور افسانوں کے مجموعے ابراہیم جلیس کا نام جہاں اردو ادب میں امر کر چکے ہیں۔ یہاں پر کتابوں کے نام پڑھنے سے ہی ہنسا ہمیں آتا ہے، تو یہ کتابیں پڑھیں گے تو ہمیں اور زیادہ اس میں مزہ لے کر پڑھیں گے۔ تخلیق کار کے بعد اب تخلیق دیکھیں گے۔ زیر نظر مضمون میں ابراہیم جلیس نے خواتین کی، عورتوں کی زیورات سے رغبت، خواہش اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو نہایت دلچسپ اور مزاح والے انداز میں پیش کیا ہے۔
मजमून निगार के मुताबिक औरत की खूबसूरती में सिर्फ तालीम, किरदार और इस्मत के जेवर ही 4 चांद लगा सकते हैं। ये मजमून जो है, आज जेवर का नाम जिस जगह भी कहीं भी नाम लेते हैं तो औरतें बहुत खुश होती हैं। इब्राहिम जलीस का कहना यह है कि आज औरतें जेवर ऐसा हासिल करें कि तालीम का जेवर हासिल करें। तालीम कोई चुरा नहीं सकते, कोई लूट नहीं सकता। जितनी तालीम हम हासिल करेंगे, दूसरों को जितना हम पहुंचाएंगे, हमारी तालीम में और इजाफा हो जाता है। किरदार, आदत, अखलाक, रहन सहन, तौर तरीक़ा हमारा बेहतर हो। उसके बाद जो परहेजगारी, इस्मत के जेवर ही 4 चांद, परहेजगारी, ये तीनों चीज़ें इंसान के अंदर, औरतें के अंदर या मर्द हजरात के अंदर आ गए तो और बेहतर रहेगा। तुर्की के मशहूर ज़रीफ़, तुर्की के एक मशहूर लतीफ़ा गो हजरात जिनका नाम मुल्ला नसीरुद्दीन, एक रात बहुत ही गहरी नींद सो रहे थे कि एक चोर उनके घर में दाखिल हुआ और उनका कोट चुरा ले गया। जब सुबह उन्हें कोट के चोरी होने का पता चला तो उन्होंने सब लोगों के सामने खुदा का शुक्र अदा किया। परवरदिगार, जब कोट चोरी हो गया तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं उस वक्त कोट पहने हुए नहीं था। किस वक्त? जब मैं सोया हुआ था तो उस वक्त मैं कोट पहने हुए नहीं था, वरना चोर मुझे भी चुरा ले जाते, चोर कोट के साथ मुझे भी उठाकर ले जाते। खुदा की बारगाह में इस किस्म का इजहार तशक्कुर अपने खासुल खास खबरों के शहर मीरपुर खास की एक खातून, एक औरत जिनका नाम मुसम्मता आयशा ने भी किया। खबर यह है कि मीरपुर खास के मोहल्ला, उस मोहल्ले का नाम मकरानी पाड़ा में एक औरत मुसम्मता आयशा एक तोले सोने की बालियां पहने सो रही थी कि एक चोर घर में घुसा और मुसम्मता आयशा का एक कान काटकर फरार हो गया। कान काटने पर आयशा ने रोना चिल्लाना शुरू किया तो करीब सोया हुआ शौहर जाग पड़ा और ये समझा कि आयशा ने कोई डरावना ख्वाब देखा है, इसलिए उसने कहा, कलिमा पढ़कर सो जाओ। आयशा चिल्लाई। मुसम्मता आयशा एक तोले की बालियां पहने सोई हुई थी तो उस वक्त चोर आया और उनका एक कान काटकर ले गया। जब कान काटकर ले गया तो मुसम्मता आयशा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और बाजू सोए हुए शौहर जाग गए और शौहर को आयशा ने ये कह रहे हैं, कलिमा पढ़कर सो जाओ। शौहर कह रहे हैं अपनी बीवी से, यह मतन के हवाले भी पूछा जाएगा, मेरा कान काट लिया गया और तुम कलिमा पढ़ने को कह रहे हो। आयशा अपने शौहर को कह रहे हैं, मेरा कान काट लिया गया और तुम कलिमा पढ़ने को कह रहे हो। ये भी मतन के हवाले से पूछा जाएगा
کہ ये कौन से सबक से लिया गया है और इनके मजबून निगार कौन हैं, ये जुमला कौन कहा, कब कहा, किससे कहा। खैर बहरहाल इसके बाद शौहर तो चोर पकड़ने दौड़ा और जब वापस आया तो देखा कि आयशा कलिमा पढ़ने की बजाय नमाज पढ़ रही और नमाज पढ़ने के बाद बाआवाज़ बुलंद उसने ये दुआ मांगी। यहाँ पर जब आयशा का कान काटकर चोर ले गया तो चोर को पकड़ने उनके शौहर दौड़े और बाद में शौहर आकर ये देखे कि उनकी बीवी आयशा कलिमा पढ़ने के बजाय नमाज पढ़ रही। आज हमारा माहौल ऐसा है, हमारा किरदार ऐसा है कि कोई चोर जब चोरी करके कोई सामान लेकर जाता है तो हमें पूरे मोहल्ले को जमा करते हैं। अगर 1 रुपया गया तो 100 रुपये की हमें चोरी उस चोर पर इल्ज़ाम आयत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आयशा ने अल्लाह से नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ कर रही हैं, खुदाया ऐ खुदा तेरा शुक्र है कि मैं करवट के बल सोई थी, मैं ये करवट से सोई हुई थी, वरना चोर मेरा दूसरा कान भी काट कर ले जाता। अगर मैं ये करवट से नहीं सोई होती तो चोर मेरा दूसरा कान भी काट कर ले जाता। इस खबर की इससे ज़्यादा तफसीलात तो मालूमात तो हमें नहीं मालूम। हाँ, अलबत्ता अंदाजे से हम ये कह सकते हैं कि आयशा के शौहर ने आयशा को बारहा मना किया होगा कि सोने के दौरान सोने के जेवर कान में ना पहना करो। शौहर बीवी को बार बार ये कहा होगा कि जब सोते हैं तो सोने के जेवरात आप नहीं पहनकर सोएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन आयशा ने इसकी बात उस कान से सुनकर उस कान से उड़ा दी होगी। एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो बात छोड़ दी होगी, यानी तवज्जो नहीं दी होगी। लेकिन अब सोने के दौरान सोने की बाली के बास उनका एक कान कट चुका था, तो अब आगे को इसके कान हो गए होंगे और अब तो उसका भी इम्कान नहीं कि वो कोई बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दे। ये कान तो कट चुका था, अब ये कान से सुनकर दूसरे कान से बात को छोड़ दे, अब ये भी इम्कान नहीं, क्योंकि अब उसका ये कान तो कट ही चुका है। वैसे बड़ी खैरियत ये हुई कि वो करवट के बल लेटी हुई थी, ये करवट से सोई हुई थी, वरना कन कतरा चोर, कान काटकर ले जाने वाला चोर उसका दूसरा कान भी काटकर ले जाता। हो सकता है कि इस खबर को पढ़कर जितने भी, यहाँ पर खबर जो है ये अखबार है, खाफ बेरे खबर, ये गूर है जो दफनाया जाता है। खबर को पढ़कर जेवरात की आशिक, जो जेवरात को बहुत ज़्यादा चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, बहुत सी औरतें कान को हाथ लगा लें। ये खबर सुनेंगी तो बहुत सारे औरतें जेवर पहनने के बाद कान को हाथ लगा लेंगी और कान पकड़कर तौबा कर लें कि आइंदा से कान में, नाक में, गले, टुखनों में और कलाइयों में सोने के जेवर कभी ना पहनेंगे। जेवरात के शौकीन, जेवरात को पहनने वाले सभी औरतें तौबा करेंगे कि जिस्म के कौन से भी आज़ा पर जेवर नहीं पहनेंगे। क्या पता कि जो चोर कान की बाली के लिए कान काट ले, वही चोर गले की माला के लिए गला काट ले। जो चोर कान के लिए अगर कान काट सकता है तो गले के हार के लिए गला भी काट लिया जाएगा। अगर गला काट
लिया तो इंसान वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पर नाक में तो औरत को कोई जेवर कभी पहनना नहीं चाहिए। नाक कट गई तो फिर औरत दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ही कहाँ रहती है। यहाँ पर एक बात कहना मैं बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। मेरे माँ और बहनें इस बात से बेजार ना हों कि खुदा की बनाई हुई एक अनमोल चीज़ नाक, एक औरत जब कोई एक अपने बेटे को एक रिश्ते के लिए जब जाता है, नाक ज़रा कमोपीश रह जाती है तो औरत उस लड़की को, उनकी भी बेटी या उनकी भी बहन हो सकती है, उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर देते हैं कि इसकी तो नाक ही नहीं है। क्या ये चीज़ें इंसान के बस की बात नहीं है? ये तो खुदा की दी हुई नेमत है। आप उस लड़की या उस औरत या उस माँ को ठुकराना ये खुदा को ठुकराने के बराबर है। तो यहाँ पर इब्राहिम जलीस ये कहना चाहते हैं कि ख़ास तौर पर नाक में तो औरत को कोई जेवर कभी पहनना नहीं चाहिए। नाक कट गई तो फिर औरत दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ही कहाँ रहती है। औरत कान में जेवर ना पहने, जिस्म के दूसरे आज़ा पर, जिस्म के दूसरे हिस्से पर पहने, तब भी वो चोरों के लिए सोने की कान है। अगर औरतें जेवर अपने जिस्म पर जिस जगह पर भी वो पहने तो चोरों के लिए वो एक सोने की कान है, सोने का खजाना है या दुकान है। कान कान कान, बार बार कान का जिक्र पढ़ने से इम्कान है कि आपके कान पक गए होंगे। कान कान कान, ये बात मैं आपको बार बार कहने से आपको बहुत बेजार हो गया होगा। मैं भी ज़्यादा आपके कान नहीं खाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ। इस ज़माने में जबकि चोर बहुत ज़्यादा हो गए, औरतों को जेवर ना नाक में पहनना चाहिए और ना कान में, और ना मकान में रखना चाहिए। जेवर मकान में रखने का अंदेशा, डर ये है कि दीवार के कान होते हैं। दीवार के कान, राज की बात अकेले में आहिस्ता कहनी चाहिए। क्या पता कि किसी चोर के कान में भंग पड़ जाए, कोई चोर के कान में ये बात पड़ जाए कि इस मकान में जो औरत रहती है इसके कान में सोने का जेवर है, और फिर वो चोर इस औरत के सोने का इंतज़ार करे कि वो सो जाए तो उसके सोने का जेवर उड़ा ले जाए, कि उस औरत सोने के बाद जब वो चोर घुसकर उसके जितना भी जेवर था वो पूरे का पूरा लेकर जाए। अगरचे ये ज़माना इतना तरक्की याफ्ता है, आज ज़माना बहुत ही तरक्की कर रहा है, कर चुका है, कर रहा है कि औरतें सिवाय जेवर तालीम के और कोई जेवर नहीं पहने। इब्राहिम जलीस का कहना है कि औरतें सोना ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की बजाय जो तालीम का जेवर है, कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई इंसान इसे लूट नहीं सकता। जितना इल्म हमें कम करने का सोचें, हमें दूसरों को तालीम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहें, देते रहें, तो और इसमें ज़्यादा होता है। तो आज अगर जेवर हासिल करना है तो तालीम का जेवर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने वाले बने। मगर घर में या बैंक के सेफ डिपॉजिट में, हिफाजत में इनका जेवर ज़रूर रखा होता है। आज जेवर बहुत सारे औरतें घर में भी रखते हैं, बैंक में भी रखते हैं, और शादी मेज़बानी के मौके पर वो इन जेवरात की नुमाइश करती हैं। जब शादी आती है
تو اس बज़ में ऐसा जेवर पहनते हैं, वफा का दामन जब कहीं से पारा पारा हो गया, ओढ़नी मफरल बन गई, बुरखा खरारा हो गया। जेवर ऐसा पहनते हैं कि वहाँ पर इज्जत आबरू का ख्याल भी नहीं रहता, कि वहाँ पर ओढ़नी तो दूर की बात, दुपट्टा दूर की बात, बहुत सारे अपना जेवर दिखाते हुए ऐसा आते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हम सभी इससे वाकिफ। अब जिन औरतों के पास ना जिस्म पर जेवर है, ना घर में और ना सेफ डिपॉजिट में, तो समझें कि उन औरतों के शौहर या देवर उसका जेवर बेच कर खा गए। जेवर ना घर में है, ना बैंक में है, जेवर कहीं भी है, तो ये हमें समझना चाहिए कि वो जेवर या शौहर बेचकर खा गए या देवर बेचकर खा गए। आज बहुत सारी जगह ऐसे हादिसात हो रहे हैं। अल्लाह हम सबको इन हादिसात से हिफाजत करे। हमारे मुल्क के शौहरों को जहां और बहुत सी चीज़ें खाने का शौक़ होता है, वहाँ बीवी का जेवर बेचकर खाने का भी बड़ा शौक़ होता है। आप भी बहुत से ऐसे ससुरों को जानते होंगे जो दामादों के बिलउमूम शाकी होते हैं। हमारे मुल्क के शौहरों को सिर्फ बीवी का जेवर बेचकर ही खाने का शौक़ नहीं होता, बल्कि घर में जो भी सामान रहता है वो सब बेच कर खाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ससुरे भी हैं जो दामाद की शिकायत या गिला करते हैं। कम बखत बेटी का सारा जेवर बेचकर खा गया। ससुर कहते हैं कि कम बखत बेटी का जो जेवर है वो पूरा जेवर बेचकर खा गया। वालिदैन बेटी को जहेज में जेवर इसलिए देते हैं कि जब बेटी पर बुरा वक्त पड़े, यानी बेटी का शौहर किसी दूसरी की बेटी में दिलचस्पी लेने लगे और बीवी को रोटी कपड़े का मोहताज बना दे, वो जेवर बेच कर रोटी खाए या फिर शौहर को खिलाए। यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम और ज़रूरी समझता हूँ कि इब्राहिम जलीस इस मजमून निगार ने बेटी का शौहर किसी दूसरी की बेटी में दिलचस्पी लेने लगे। आज बहुत सारे हजरात ऐसे हैं, घर में बीवी रहने के बावजूद भी दूसरी औरत पर नज़र डालते हैं। ऐसे हजरात को अल्लाह सही रास्ता दिखाए। बीवी शौहर के इंतकाल होने के बावजूद भी पूरी ज़िंदगी वो शौहर के लिए सर्फ कर देती है। अगर शौहर घर में पड़ा रहता है तो बीवी दूसरों के घर का काम करती है और अपने बच्चे शौहर को रोटी कपड़ा वगैरह वो अच्छे तरीक़े से खिला भी सकती है और पहना भी सकती है। लेकिन मर्द हजरात, जब एक औरत का इंतकाल हो गया तो उसके 1 साल इंतज़ार करने की बात तो दूर, गिने चुने दिनों में फिर दूसरी शादी हो जाता है। मैं मर्द हजरात से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीक़े से एक औरत अपने बच्चों के लिए अपने शौहर की याद में ज़िंदगी गुजारती है, उनको हज़ार सलाम, उस तरीक़े से हमें भी ज़िंदगी गुजारे। घर में औरत रहने के बाद दूसरी बीवियों पर नज़र भी ना डाले। इससे हमें एक इबरत वाला सबक हासिल करने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मकसद सभी मर्द हजरात के लिए नहीं है। मैं भी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे वाक़यात देखा हूँ, तो आज ये मौका मुझे मिला है, इसके ज़रिए से मैं बताने की कोशिश किया हूँ।
लेकिन अगर ऐसा होता है कि औरत पर बुरा वक्त नहीं पड़ता और वो जेवर अपनी बेटी के जहेज के लिए संभाल कर रखती है, अगर शौहर बेचकर नहीं खाया या उनके घर में कोई दूसरे देवर वगैरह बेचकर नहीं खाए, तो माँ वो जेवर वैसे ही रखती है और ये सिलसिला इसी तरीके से बेटी की बेटी, बेटी की बेटी और बेटी की बेटी की बेटी, ऐसे ही ये सिलसिला चलता है। जो जेवर कभी सुक्कड़ नानी ने पहना था वो जेवर सुक्कड़ नवासी भी पहनती है। इसी तरह जेवर डेड मोनी की तरह नस्ल दर नस्ल बेकार पड़ा रहता है। आज जेवर जब घरों में रखते हैं तो ये डेड मोनी की तरह है, लेकिन ये नस्ल दर नस्ल, हमारे बाप दादा के ज़माने में ये जेवर था, आज हमारे ज़माने में भी ये है, किसी अच्छे किसी मुफीद काम में इस्तेमाल नहीं होता, कोई अच्छे काम में ये जेवर इस्तेमाल नहीं होता। औरतें अगर जेवर पहनना ही चाहती हैं तो हाथ में एक सोने की घड़ी, शादीशुदा हो तो उंगली में एक सोने और हीरे की अंगूठी और गले में असली या नकली मोतियों की माला, बस। अगर औरतें जेवर पहनना ही चाहती हैं, शौक़ है, अरमान है, तो वो बस सोने की एक घड़ी पहने। अगर शादीशुदा हैं तो वो उंगली में एक अंगूठी या हीरे की एक या सोने की या हीरे की एक अंगूठी या गले में असली या नकली एक मोतियों की माला, बस एक हार पहन ले। औरत इतनी ही जेवर पहन ले तो कितनी प्यारी लगती है। औरत अगर सिंपल जेवर इस्तेमाल करें तो बहुत प्यारी खूबसूरत नज़र आती है। लेकिन बाज़ औरतें ऐसा ढेरों जेवर पहनती हैं कि सिवाय चोरों के और कोई उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। मैंने पिछले एक शेर जो पढ़ा हूँ, वफा का दामन जब कहीं से पारा पारा हो गया, ओढ़नी मफरल बन गई, बुरखा खरारा हो गया। तो औरतें जेवर ऐसा पहनती हैं कि वहाँ पर पर्दा तमीज़ की कोई बात नहीं रहती। जेवर दिखाने के लिए जो दूसरी गरीब औरतें वहाँ पर बग़ैर जेवर के आती हैं तो उनको दिखा दिखा कर और ज़्यादा रुस्वा करते हैं। ऐसी औरतों को चाहिए कि वो जेवर पहनकर तो आती हैं, लेकिन वहाँ पर चोरों को भी दावत देती। चोरों की और कोई उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, या अगर कोई हम जैसा मर्द अगर अच्छा मर्द भी देख ले तो उसका दिल भी चोर बनने को चाहे। लिहाजा औरतों को चाहिए कि वो सब अपने अपने जेवर बेचकर कोठियाँ बनाएं। औरतें जो जेवर ज़्यादा रखे हुए हैं उनको इब्राहिम जलीस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे मकान तामीर करवाएं और कार खरीदें वगैरह, वरना शौहर बेच खाएं या चोर चुरा ले जाए तो फिर बैठी धाएं धाएं जिंदगी भर रोती रहेंगे। अगर घर नहीं बनाए, कार वगैरह नहीं खरीदे तो वो जेवर, वो सोना, वो चांदी वगैरह वगैरह शौहर बेचकर खाएगा, या नहीं तो चोर चुरा लेकर जाएगा और वो औरतें जिंदगी भर चीखें मार मार कर रोती रहेंगी। जेवर में जेवर तो तालीम का जेवर, जेवर में जेवर तो तालीम का जेवर हासिल करें। जेवर में जेवर तो किरदार का जेवर,
जेवर में जेवर तो आदत अखलाक का जेवर हासिल करें, जेवर में जेवर तो इस्मत का जेवर, परहेजगारी का जेवर इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो जेवर होता है वो अच्छी खासी खूबसूरत औरत को भी भदी बना देता है। अच्छी औरत है, अगर जेवर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो बदसूरत, भदी के माने यहाँ पर बदसूरत के हैं, बदसूरत बना देती हैं। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा है, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि देखो किस कदर लगता है भदा चांद को गहन। औरत खूबसूरत है, अगर वो सिंपल बहुत सीधा सादा जेवर पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। चांद है, अगर इसे खूबसूरत बहुत ही करोड़ों अरबों वाला जेवर भी अगर उसे पहनाएंगे तो बदसूरत नजर आएगा। तो यहाँ पर ये जेवर का चक्कर यहीं पर ख़त्म होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी को इस जेवर का चक्कर इब्राहिम जलीस का लिखा हुआ मजमून मालूम हो गया होगा। आप सभी 1 से 2 मरतबा पढ़ लें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और एक एक मार्क्स के सवालात हैं। एक एक मार्क्स के सवालात में जाने से पहले मुहावरात हैं, ये मुहावरात भी देख लें ताकि इम्तिहान में पूछा जाएगा। मुहावरात तो जुमलों में इस्तेमाल, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। कुल 6 या 7 पूछेंगे, आपको जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। कान, ये कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाना, तवज्जो नहीं देना, बेपरवाही। कान खाना, बकवास से परेशान करना, कान पकना, उगता जाना, बेजार होना। आंख उठाकर ना देखना, खातिर में ना लाना, मुतवज्जो नहीं होना। धाएं धाएं रोना, जोर जोर से रोना, कान में भंग पड़ना, उड़ती उड़ती खबर मिलना। ज़रबुल मिस्ल, दीवार के कान होते हैं, राज की बात अकेले में आहिस्ता कहनी चाहिए। एक एक मार्क्स के 6 सवालात हैं, इसे भी आप देखें। मजमून नवेस ने तुर्की के किस मशहूर ज़रीफ़ का जिक्र किया है? मजमून निगार ने तुर्की के मशहूर ज़रीफ़ मुल्ला नसरुद्दीन का जिक्र किया है। आयशा के शौहर ने बारहा किस बात से मना किया था? आयशा के शौहर ने बारहा आयशा को सोने के जेवर पहनकर सोने से मना किया था। हमारे मुल्क के शौहरों को किस बात का बड़ा शौक होता है? हमारे मुल्क के शौहरों को बीवियों के जेवरात बेचकर खाने का बड़ा शौक होता है। मजमून निगार के मुताबिक औरतें जेवर पहनना चाहें तो उन्हें क्या पहनना चाहिए? मजमून निगार के मुताबिक औरतों को तालीम का जेवर, किरदार का जेवर और इस्मत का जेवर पहनना चाहिए। 5वां सवाल, खूबसूरती जेवर को मोहताज नहीं होती, इस बात को मजमून निगार ने किस शेर से वाज़ेह किया है? खूबसूरती जेवर की मोहताज नहीं होती, इस बात को मजमून निगार ने इस शेर से वाज़ेह किया है। नहीं मोहताज जेवर का
जिसे खूबी खुदा ने दी कि देखो किस कदर लगता है भदा चांद को गहना। छठा सवाल, औरत के जिस्म पर या सेफ डिपॉजिट में जेवर ना हो तो क्या समझना चाहिए? औरत के जिस्म पर या सेफ डिपॉजिट में जेवर ना हो तो ये समझना चाहिए कि तमाम जेवर उसके शौहर ने बेचकर खा गए। अब 2 मार्क्स के सवालात हैं, 2 या 3 जुमलों में लिखें। मीरपुर खास के मोहल्ले में क्या वाकया पेश आया? मीरपुर खास के मोहल्ले में मकरानी पाड़ा में एक औरत मुसम्मता आयशा 1 तोले सोने की बालियां पहने सो रही थी कि एक चोर घुसा और मुसम्मता आयशा का एक कान काट कर फरार हो गया। आयशा के रोने चिल्लाने पर उसका शौहर बेदार हो गया। दूसरा सवाल, औरतों को खास तौर पर नाक का जेवर क्यों नहीं पहनना चाहिए? औरतों को खास तौर पर नाक का जेवर इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि आजकल चोर सोने की आस में औरतों के जेवर जिस जगह होते हैं वो काट कर ले जाते हैं। जैसे कि मुसम्मता आयशा का कान चोर ने काट लिया, किसी का हाथ काट लिया, किसी का गला काट लिया। अब सब जाएं तो लोग चोर को गाली देंगे, मगर किसी औरत की नाक कट गई तो लोग शुबा करेंगे, शक करेंगे कि कहीं औरत ही में कोई खराबी तो नहीं कि लोगों ने नाक काट दी। इसलिए औरत को नाक में कोई जेवर नहीं पहनना चाहिए। तीसरा सवाल, जेवर मकान में रखने पर किस बात का अंदेशा होता है? जेवर मकान में रखने का अंदेशा यह है कि दीवार के कान होते हैं और क्या पता किस चोर के कान में भंग पड़ जाए कि इस मकान में जो औरत रहती है इसके कान में सोने का जेवर है और फिर वो चोर उस औरत का इंतजार करे कि वो सो जाए तो उसके सोने का जेवर उड़ा ले जाए। चौथा सवाल, औरतों को जेवर बेचकर क्या करना चाहिए और क्यों? औरतों को जेवर बेचकर कोठियां बनानी चाहिए, कार खरीद लें और आराम की जिंदगी बसर करें, वरना शौहर बेचकर खा जाएंगे या चोर उड़ा ले जाएं तो फिर बैठी धाएं धाएं जिंदगी भर रोती रहेंगी। पांचवा सवाल, मजबून निगार ने औरत की खूबसूरती के लिए कौन से जेवरात को जरूरी करार दिया है? मजबून निगार ने औरत की खूबसूरती के लिए तालीम का जेवर, किरदार का जेवर और इस्मत का जेवर करार दिया है। 4 मार्क्स के यहाँ पर 4 सवालात हैं, वो देखें कि मजबून निगार ने औरत के जेवर और चोर के मुताल्लिक़ किन ख्यालात का इजहार किया है? मजबून निगार ने औरत के जेवर के मुताल्लिक़ ये कहा कि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है, औरत का जेवर किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि घर में रखो तो खतरा चोर ले जाएंगे और बैंक में रखे तो ये खतरा मुसीबत के वक्त शौहर बेचकर खा जाएंगे। जेवर असल में गहना नहीं बल्कि औरत के लिए चांद का गहन जैसा है। औरत जब जेवर पहनती है तो जिस आज़ा पर पहनती है इसके कट जाने का खतरा होता है, जैसा कि मुसम्मता आयशा के साथ हुआ। चोर ने इसका कान काट लिया। इस तरह किसी का गला, हाथ या नाक काट ले तो गलत फहमी पैदा हो जाएगी कि नाक की वजह से कटी है। इसीलिए मजमून नवेस ने कहा
کہ عورت کا اصل زیور اس کا کردار، اخلاق اور تعلیم ہے۔ دوسرا سوال، میرپور کی خاتون عائشہ کے ساتھ پیش آئے واقعے کو اپنی زبان میں لکھے۔ مصمتہ عائشہ جو میرپور میں رہنے والی خاتون تھیں، ان کو زیور پہننے کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ تولے بھر کی بالیاں اپنے کانوں میں پہنے رہتی۔ یہ ایک مرتبہ رات کو سوئی تھی تو چور آ کر اس کا کان کاٹ کر لے گیا۔ اس کی کراہٹ اور چلانے سے شوہر نے جاگ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا چور کان کاٹ کر لے گیا۔ شوہر چور کے پیچھے بھاگا، واپس آ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ مصمتہ عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، ورنہ وہ دونوں کان کاٹ کر لے جاتا۔ چونکہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی تو چور صرف یہ کان کاٹ کر لے گیا۔ مضمون نگار عورتوں کو یہ صلاح دیتے ہیں، یہ نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورت زیور پہننا چھوڑ دیں تو بہت اچھی لگے گی، اور وہ بھی بہت ہی سمپل پہنا کریں۔ والدین بیٹی کو جہیز میں زیور کیوں دیتے ہیں؟ والدین بیٹی کو جہیز اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر بیٹی پر برا وقت آئے اور شوہر نہ کمائے تو بیٹی کم از کم زیور بیچ کر اپنا گھر چلائے، یا پھر یوں ہو کہ داماد ہی بیٹی کو زیور بیچ کر گھر چلائیں یا کھا جائیں۔ جہاں یہ دونوں نہ ہوں تو ان کی بیٹی اپنے زیورات کو سنبھال کر رکھے تاکہ وہ اس کی بیٹی کے جہیز میں دینے کے کام آ جائے۔ اسی طرح نسل در نسل چلنے والا زیور خاندانی اثاثہ، خاندانی جائیداد بن کر رہ جاتی ہے۔ چوتھا سوال، مضمون نگار نے اس مضمون کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ مضمون نگار نے اس مضمون کے ذریعے عورتوں کو اور والدین کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ زیور کا دینا اور لینا دونوں کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ زیور عورت پہنے تو اس کی جان اور جسم کو خطرہ ہے، گھر میں رکھے تو گھر کو خطرہ، اور اگر چور نہ لے جائے تو کم از کم شوہر ہی مصیبت کے وقت بیچ کر کھا جائے گا۔ اس لیے اصل زیور جو عورت کا ہے وہ ہے تعلیم کا زیور، کردار کا زیور، عصمت کا زیور۔ یہ زیور ہوں تو عورت بہت حسین لگتی ہے۔ اگر ان زیوروں کے بغیر عورت جسم بھر کر سونا پہن لے تو ایسی بھدی لگے جیسا کہ چاند کو گہن لگتا ہے۔ اب یہاں پر 3 متن کے حوالے ہیں، یہ بھی 2 مارچ کے لیے پوچھے جائیں گے۔ ورنہ چور مجھے بھی چرا کر لے جاتے، یہ جملہ سبق زیور کا چکر سے لیا گیا ہے، اس کے مضمون نگار ابراہیم جلی سے۔ اس وقت کہا جب ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا اور ان کا کوٹ چرا لے گیا۔ جب ملا نصیر الدین صبح ان کو کوٹ چوری ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے سب لوگوں کے سامنے خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا بہت بہت شکر ہے کہ میں اس وقت کوٹ پہنے نہیں سویا ہوا تھا، ورنہ چور مجھے بھی چرا کر لے جاتے۔ دوسرا، کلمہ پڑھ کر سو جاؤ، یہ جملہ سبق زیور کا چکر سے لیا گیا ہے اور اس کے مضمون نگار ابراہیم جلیس ہیں۔ اس جملے کو عائشہ کے شوہر نے اس وقت کہا جب گہری نیند میں اس نے عائشہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنے اور گھبرا کر اٹھا۔ یہ سوچا کہ شاید
आयशा ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, इसलिए चिल्ला रही हैं। इसलिए उसने कहा कि कलिमा पढ़कर सो जाओ। जिसके जवाब में आयशा ने कहा, मेरा कान काट लिया और तुम कलिमा पढ़ने को कह रहे हो। तीसरा, मेरा कान काट लिया और तुम कलिमा पढ़ने को कह रहे हो। ये जुमला सबक जेवर का चक्कर से लिया गया है और इसके मुसन्निफ इब्राहिम जली से। इस जुमले को मुसम्मता आयशा ने कहा अपने शौहर से, उस वक्त कहा जब वो तोले भर की सोने की बालियां पहनकर सो रही थी और चोर उसका कान काट कर ले गया। आयशा दर्द के मारे चिल्लाई तो उसका शौहर उसके रोने, चीखने, चिल्लाने पर जाग गया और सोचा कि आयशा ने कोई डरावना ख्वाब देखा हो, इसलिए उसने कहा कलमा पढ़कर सो जाओ। ये जुमले के जवाब में आयशा ने कहा, मेरा कान काट लिया और तुम कलमा पढ़ने को कह रहे हो। अजीज तलबा व तालिबात, यहीं पर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर के मतन के हवाले यहीं पर ख़त्म होते हैं। आप इन सभी सवालात के जवाबात और मतन के हवाले से जो कहा गया हूँ इसे अपनी नोट्स में दर्ज कर लें और बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ें ताकि आने वाले इम्तिहान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात में पास हों और आपका मुस्तक़बिल बनाने में कोई कसर बाकी ना रहे। तो बस मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।